Hello friends, a very warm welcome to Ansarkari, and in this economics optional paper 1 questions, our goal is again to continue the kind of level that we have maintained in the previous questions and to see that what best we can bring on the platform for our own learning first. Yes, this can be inspiring for so many others, but then always a chain, like the way China sees the string of pearls, or like the India says that Chakraview, that approach is only going to help us in the longer run. So it's an opinion, it's a kind of platform, it's a kind of an idea, it's a kind of a brainstorming, much better than any kind of mechanical brainstorming, because examination never supports any kind of artificial intelligence process. Examination wants your mind to be intelligent enough. So the question says, what is your opinion on the view that economic reforms process has largely bypassed agriculture? Largely bypassed. अब बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है उस तरीके से आप ये लिख दो हाँ बाईपास कर गया तो कुछ रह ही नहीं गया। आप ये लिख दो कि भाई रिफॉर्म तो बहुत हुए हैं, तब मर गए तो एग्रीकल्चर डूबा पड़ा है। तो हमें हम्म। क्या करना पड़ेगा कि कोशिश तो बहुत हुई, पहुंच नहीं पाया। हम्म। इतना पहुंच पाया तब तो नंबर आएंगे। जी। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की भी कुछ चीजें पहुंची और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की भी पहुंच रही हैं। तो हम्म। बाईपास तो नहीं किया है। यही स्टैंड लेके हमें आंसर को लिखा जा सकता है। तो हम देखते हैं हमने क्या किया है ताकि हम डिस्कस कर सकें। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स have not been largely bypassed, as showcased by the fact that 3% of global land area is India and share of 17% of world population is net exporter of milk, millets, and cereals, as per Economic Survey 24-25. I think wonderful start and a solid positive start, हम्म। authentic start. अब देखते हैं आगे। नॉट बाईपास गवर्नमेंट लार्जेस्ट शेयर ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर एमएसपी फर्टिलाइजर सब्सिडी 20 crore to farmers amounts to 3 lakh crore. Very true. Mechanization of agriculture has increased per hectare yield by 3 times. NABARD, for example, Andhra Pradesh, share of research and development has jumped from 0.3% to 0.8% as by ICAR. While the outcomes involving BT cotton seeds, cotton production 2002, 1995, 2020 boom phase. Growth oriented schemes like Green Revolution 2.0 to double farmers' income, 10% increase yield and crop insurance with post harvest losses around covered too by the Prime Minister Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. But challenges under the government radar. Agriculture, cold storage supply chain with private sector greenfield investment, loan waivers, 100% of debt RBI told signaling 2.5 lakh crores, systemic integration with agriculture startups introducing drone Didi scheme to leverage feminization of agriculture. Therefore, agriculture reforms have been the mainstay of reforms in India. तो मतलब बहुत आई थिंक वंडरफुली रिटर्न, नो चेंजेस रिक्वायर्ड, सॉफ्ट है, सटल है, फैक्ट्स भी हैं, डेटा भी है। लेकिन आप लास्ट में ये मत लिखिए कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैव बीन द मेन स्टे। आप ये कहिए कि देयरफॉर इट हैज नॉट बाईपास्ड। मतलब आप ये या ये लिख दो लास्ट में आप कि देयरफॉर रादर देन बाईपास reform shadow have been there on agriculture, but soon they will be more forceful and integrated. बस हो गया। जी। लास्ट में भी आप ये बात बोल दो कि भाई बाईपास तो नहीं किया है, लेकिन मेन स्ट्रीम हार्ट बनने में अभी समय लगेगा। जैसे बाईपास सर्जरी मान लो, तो बाईपास का मतलब होता है आपने रास्ता छोड़ दिया। हम्म। तो मतलब बाईपास नहीं किया है, रूट यही है करना। तो बिना एग्रीकल्चर के तो भारत ही विकसित नहीं हो सकता। हाँ जी। लेकिन आपने अच्छा लिखा, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, आई थिंक वंडरफुली रिटर्न एंड गुड जस्टिफाइड। तो इसमें कोई वो नहीं है, इसमें ज्यादा आपने फैक्ट्स भी शुरू में नहीं डाले, आपने पहले कॉन्सेप्ट को बोला फिर आपने फैक्ट डाला। तो आई थिंक वेल वेल टेकन अप, आई वुड से। जी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस नीड टू बी इफेक्टिवली रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड इन इंडिया। इस पे आरबीआई ने अभी रिकमेंडेशंस दिए हैं। आरबीआई ने अभी बहुत सारे आपको चेंजेस की बात की है उन्होंने। Can you suggest some issues in this direction? So RBI ने already कर ही दिया है. So NBFCs are the bedrock of affordable finance in India and promotes competition, increasing efficiency of Indian financial ecosystem. A credit worth 20 lakh crore had been invested in infrastructure creation projects by RBI, generating 3 times return in past 2 decades. Effective regulation and monitoring need to be cleared as per Narsimhan Committee recommendations. Width of the ambit of Basel norms to effectively deposit accepted non-NBFCs. NBFCs have largest share of external borrowing through ECB route that requires constant monitoring through self-disclosure reports on website to avoid asset liability mismatch. ILD failure due to this. Maintenance of SLR and CRR under RBI Act 1934 as NBFCs have constituted sufficient share of the stressed assets. Imbibe corporate governance framework, third-party audits and preventive measures, sustained expansion of a project 20% CAGR to do limitations of banking in India as per RBI by 2030. The regulation effectively will safeguard consumer base and protect resilience. I think all very big points are there, but only thing that, as I was saying, that RBI in just last 3 months or so
it came up with those guidelines that where how non-banking finance companies they must deal, with the gold loan, and uh, जी सर। refinancing. So that element is only there क्योंकि ये बात कर रहा है regulated and monitored. तो आपने हम्म। बिल्कुल सही कहा कि how NBFCs, because they are actually, if they are not just exploiting the customers, but on the other hand, their account books are not very clean. जी। द मनी इज, गोल गोल घूम रहा है, तो कैसे होगा फिर? वो वाले बस पॉइंट आ जाए दो तीन, हम्म। बाकी आई थिंक इट इज ऑन ट्रैक। वो वाले बस एकदम रिसेंट है, वो आने चाहिए। जी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ए सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब बताओ, तो अब ये हमारे हाथ में है, चाहे फिर आप इसमें बताओ कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का पार्ट है, क्योंकि अब जो है आपका जो इवन मुझे कहना चाहिए कि वोटर वोटिंग वोटिंग जैसे सर्विसेज हैं, आधार है, हम्म। या फिर आपका बैंक भी है, बैंक में अकाउंट भी है, या फिर आपका वही बात है कि आपका मतलब लैंड सर्वे भी है, या आपका विलेज के जो मैप अभी सर्वे हो रहे हैं, जिसको एक पूरा उसका नाम है जियो पीएम स्पैशियल सर्वे। स्वामित्व। हाँ बिल्कुल, वो हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का बिल्कुल सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया। हम्म। आपका डीडीए तक अभी तो बोल रहे हैं कि आप अपने कोऑर्डिनेट लो, घर के फोटो लो, और आप जो है फोटो खींच के आप अपने पोर्टफोलियो पे दे दो। जी। गवर्नमेंट इज एबल टू सी बाई ड्रोन की यहाँ पे पेड़ थे नहीं थे, 3 साल बाद पेड़ है कि नहीं। हम्म। रोड के लिए हो गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क पूरी बन गई है, लोग ही फोटो खींच के डाल दे भाई की कैसी है, वही हाँ। बताएंगे अब। तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का तो बिल्कुल भी एग्री। अब कैसे आप एग्जाम्पल डालते हो, कितने पावरफुल डालते हो, कितने वही बात है लेयर 2 लेयर 3 के डालते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। तो लेयर 1 में नहीं काम चलेगा, लेयर 1 जीएस में चलेगा। So Digital India program introduced in 2014 have led to 5% beyond seen GDP growth along with reduced Gini coefficient। बिल्कुल ठीक है, चलो शुरुआत बढ़िया। Administrative multiplier effect boosted ease of doing business by single window portal for FDI approval and allows taking the progress have attracted FDI inflow at an average of US 9 billion by 2014-2024। बहुत बढ़िया पॉइंट है। Plug corruption and recidivism and empower the citizens with transparency, faceless IT filing, increase the tax to GDP ratio। ठीक बात है। Digital public infrastructure which introduced JAM Trinity UPI RuPay card created a world largest and secure digital governance model। However, India has a long way to increase efficiency by reducing the digital divide. Cost of internet fallen from rupees 100 to 10 per GB. User safety with the need of a national cyber safety policy, given digital arrests to frauds worth 5,000 crore in the first half of 2025। Therefore, inclusive growth has accelerated India। अब देखो, जब आपने लास्ट पॉइंट लिखा उसमें आप बताना चाह रहे हो कि चैलेंजेस हैं ये सारे के सारे, हाँ तो जी। चैलेंजेस के बाद अब्रप्टली आप एंड ऐसे नहीं कर सकते। हम्म। तो आप उसको बोलो, आपने सीधा ही बोल देर फोर बोल के और आपने बोल दिया कि भाई, तो ऐसा नहीं है ना, मतलब कि फिर उसके बाद लाभ लिख दो लास्ट में, दस इट इज एग्रीड अपॉन दैट विदाउट दैट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, हम्म। बट challenges must be met in order to become विकसित भारत by 2047। ऐसे होना चाहिए, हम्म। क्योंकि सारा तो फ्लो चल रहा है। हाँ। और आपने मैकेनिकल हो गया 10 इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एक्सीलरेटेड इंडिया, अरे अभी तो आप बता रहे भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और आप कैसे लिख हाँ। दोगे उसके बाद? तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसमें भी लेयर 2 आ रही है, इसमें लेयर 2 आई है, बस इस लेयर 2 को थोड़ा सिंपल और करेंगे, सेंटेंस थोड़ा छोटा होगा अभी, हल्का हल्का, बस बाकी सब ठीक है। रूरल पॉवर्टी कंटिन्यूज टू बी ए chronic problem of India which cannot be taken care by anti-poverty programs but by creation of permanent production। Discuss, बिल्कुल सही बात कही। Anti-poverty programs have taken 130 million out of extreme in last 2 decades as per the, अच्छा आपने बताया। Effectiveness आपने बता दी, चलो उसकी इंडिया come out of fragile 5 category by top 5। MSME revolution आपने बताया, 6 crore in number, 40% share। Merchandise export increased the income of rural poor by 10% on average। Agriculture modernization increased by hectare yield by 15%। ICR on average, causing urban migration where rupees 20,000 25,000 is median income। Women economic independence through digitization of SHGs, primary healthcare centers and national nutritional security। poverty right, आपने ग्राफ बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा है। हाइब्रिड अप्रोच नीडेड। अब आप लेकिन ये लिखते हैं यहाँ पर, इतना लिख दिया तो मैं भी एग्जामिनर है तो वेट करेगा कि आपने फर्स्ट पार्ट को, बट हाउएवर जी। टू मेक ओवर द गेन ऑफ दीज डेवलपमेंट्स परमानेंट एसेट्स क्रिएशन इज रिक्वायर्ड। वही आपने हाइब्रिड अप्रोच की जो बात की, तो बट हाउएवर करके लेके आना था कि भाई ये देखो, ऐसा नहीं है कि एंटी पॉवर्टी ने कुछ किया ही नहीं,
एंटी पॉवर्टी ने हमें इतना दे दिया तो इसी के नंबर मिलेंगे आपको कि आप बता पाए कि आपने क्या किया, लेकिन आप बता दो बट हाउएवर permanent productive assets will lead to skilling, not just skilling. Permanent productive assets will मतलब कि they are the magnet. जी। Permanent productive assets are the magnet for creation of smart rural India. हम्म। Smart villages कह लो, है ना, स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, मेक दम सेल्फ रिलायंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स बाय हैविंग पूरा पब्लिक एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, हम्म। रिड्यूस ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो फिर आप लिखो थर्ड पॉइंट में कि दे विल बिकम सेल्फ सस्टेनिंग एसेट क्रिएटर एंड देयर विल बी नो डिस्ट्रेस माइग्रेशन। सो हम्म। एफिशिएंसी बढ़ाओ करके रहेगा कि फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी एंड वाइडन द टैक्स बेस फ्रॉम, अब ये देखो ये फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी अभी अलग चीज ही चली गई। अरे वहां पर हमें ये बताना है अभी कि भाई कि कैसे होगा, तो ये तो उसका रिजल्ट होगा ना। अगर 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 जो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन अगर देखते हैं साथ में कि भाई डिस्कस करने को बोल रहा है वो हमें कि कैसे सिर्फ एंटी रूरल पॉवर्टी प्रोग्राम से नहीं होगा, मतलब एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम से नहीं होगा, परमानेंट एसेट्स क्रिएट करने की जरूरत है। तो जब हम आगे आते हैं, चलिए आगे आइए, जब आपने एसेट पे ही चल रहे तो एसेट क्रिएट हो गए तो टैक्स तो आदमी अपने आप ही देगा। आप तो लड़ाई ये लड़ो कि परमानेंट एसेट क्रिएट होंगे कैसे, उसके पीछे हर्डल क्या है, चैलेंज क्या है परमानेंट एसेट क्रिएट करने के पीछे। क्योंकि वहां पर आपने स्कूल बना दिया तो टीचर नहीं है, वहां पे आपने हेल्थ सेंटर बना दिया तो डॉक्टर नहीं है, वहां पे फैक्ट्री बना दी तो पानी नहीं है, वहां पर बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है तो उसके रहने का नहीं है, स्कूल नहीं है, उसके हॉस्पिटल नहीं है, तो कैसे होगा। या फिर सब कुछ है तो बिजली नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ जी सर। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई पॉवर्टी तो हटेगी जब हम प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट करेंगे, लेकिन वो प्रोडक्टिव एसेट्स भी जो है वो सिर्फ टाइम पास नहीं होने चाहिए। हम्म। यू कैन जस्ट राइट कि दे मस्ट बी रेलेवेंट, दे मस्ट बी रेलेवेंट टू द इकोसिस्टम ऑफ दैट रूरल एरिया। नॉर्थ ईस्ट के विलेजेस को कुछ और चाहिए, पंजाब के विलेजेस को कुछ और चाहिए, उत्तराखंड के विलेजेस को कुछ और चाहिए, तमिलनाडु के विलेजेस को कुछ और चाहिए, समझ रहे हैं। जी सर। वो आप बस नेक्स्ट लेयर लेके आते हैं, आपने बाकी सब तो सही लिखा है, लेकिन वही बात है कि फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और ये तो उसका रिजल्ट होगा, फिस्कल हम्म। कंसोलिडेशन ये भी रिजल्ट होगा। विलेज डू नॉट वांट टू डिपेंड अपॉन अर्बन एरियाज, लेकिन विलेज के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। नहीं। भाई भैंस रख ली, गाय रख ली, डॉक्टर नहीं है, अब बोलो हम्म। बीमार हो गई, जी। बोलो क्या करें। फसल उगा दी, टमाटर हो गए, अब 4 दिन नहीं रख सकता टमाटर, 5वें दिन सड़ने लग जाएंगे, हम्म। ट्रॉली में डाल के लेके जाएगा मंडी। तो ये जो रियलिस्टिक है ना, ये लाओ यहाँ पर हम्म। कि भाई हाँ होगा, गति शक्ति भी करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन परमानेंट एसेट क्या, ऐसा ही था तो सबको पता है 1947 के बाद से तो हुआ क्यों नहीं फिर, लेकिन हुआ भी है। आपके हम्म। फार्मा इंडस्ट्रीज बनी है, टेक्सटाइल बनी है, आपके बन रहा है ना, अब तो तमिलनाडु का मॉडल ही है वो। हाँ। तमिलनाडु टीयर 2 टीयर 3 में पहुंच गया रूरल एरियाज में। तो हम ये जो वाले पॉइंट है कि भाई जनरल पॉइंट डाल के हम जो हमारा पहले के एफर्ट होते हैं ना वो भी फिर वो जनरलाइज हो जाता है। हम्म। मतलब धार वहीं लगानी है, धार वहीं हम्म। लगाइए, धार लगाते रहिए। जैसे हाइब्रिड अप्रोच की जगह बिल्कुल से हाइब्रिड अप्रोच तो है ही है, लेकिन आपने हम्म। पहले पार्ट में तुमने बहुत अच्छे से आर्ग्यू कर दिया कि भाई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कोई फालतू नहीं। हम्म। लेकिन फिर से फर्स्ट तुमने फटाफट से समर सॉल्ट लिया और तुमने कहा लेकिन सिर्फ उससे सारी पॉवर्टी नहीं हट सकती, इसलिए परमानेंट प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करने जरूरी। हम्म। तो कैसे क्रिएट होंगे वो बताओगे ना। हाँ। परमानेंट प्रोडक्टिव एसेट लीड करेंगे स्किलिंग को, लेकिन आप पहले एसेट्स पे ही बात करो। एसेट्स कैसे क्रिएट होंगे, जी। एसेट क्रिएट होंगे जो रूरल इकोसिस्टम है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी के अकॉर्डिंगली जब कुछ डेवलप होगा, चाहे वहां पे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, चाहे वहां पे ग्रीन एनर्जी प्लांट है। बस एसेट्स कैसे क्रिएट होंगे, ये तो ये बोल रहे हैं ना कि परमानेंट प्रोडक्टिव एसेट्स इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, बट बाई प्रोडक्ट। क्रिएशन ऑफ। ये जो हम्म। कहानी बोल रहा है ये तो रोज ब्यूरोक्रेसी में बैठ के बात होती है ना। हाँ। स्कीम तो बना रहे हैं, उन्हें पता है यार स्कीम के बदले कुछ, जैसे पीएम ने क्या किया, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की जगह प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य बिजली घर योजना कर दी, हम्म। क्रिएट हो गया एसेट। हाँ। तो यहाँ तो नहीं हुआ ना ऐसा। हाँ, वो ही लेके तो आना है तुम्हें वो सर। बताना है, हाँ तो वो ही एसेट्स बताना है कि कैसे। एसेट कैसे क्रिएट होगा। आईटीआई है, हम्म। आईटीआई होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर दो, है। उसके जी। बाद जो है जो जिस एरिया का है, जैसे कहीं का मान लो पत्थर बहुत फेमस है, हम्म। तो उसकी लीगल माइनिंग होनी चाहिए।
ये नहीं कि आउटसाइडर आते हैं और करके निकल के बनते हैं। गांव 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 सड़ा हुआ रह जाता है, 1,000 करोड़ के वो पत्थर बेच रहा है। हम्म। ये ये तुम लाओगे ना, यही तो यूनिक है, ये कहीं नहीं है। हम्म। ये कहीं नहीं है, ये ना न्यूज़पेपर में है, ना इंटरनेट पे है, ना कहीं नहीं, ये आपके दिमाग में है। हाँ जी। आई थिंक वेल रिटर्न, बट यू कैन कंक्लूड क्विकली। हम्म। सही कि बैलेंस लिखना है तो डिमांड से इधर भी थोड़ा बहुत डाइवर्ट नहीं होना है। और सर वही बिल्कुल सेकंड लेयर्ड इंफॉर्मेशन पे फोकस रहना चाहिए, डेटा के थ्रू जो यस, स्पेसिफिक आ रहा है तो उसको वेरी मेंटेन ट्रू। करना है। तो आज का हमारा जो लर्निंग है वो लेयर 2 के लिए है, तो लेयर 2 लाएंगे हम्म। और सक्सेस की तरफ हम बढ़ेंगे। यही अंसरकारी की कामना है। थैंक यू वेरी मच।